we have started with hyperconjugation. Hyperconjugation जो effect है, it is also a permanent effect, but it is weaker than resonance, stronger than inductive effect. It is called as hyperconjugation because we are making the sigma bond electrons to take part in resonance. Usually pi bond electrons ही resonance में जाता है. इस केस में sigma bond को भी break करके I'm making them to participate in resonance, and the system can be either a sigma alternate pi or sigma alternate a vacant p orbital or an unshared p orbital. Vacant p orbital in case of carbocation, unshared p orbital in case of carbon free radical. कार्बन फ्री रेडिकल के केस में भी आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कार्बन फ्री रेडिकल के लिए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको. You are having C bond H, CH2, and you are having a free radical. Whenever you are having a free radical inside the molecule, if you are breaking the bonds, always break the bond in homolytic fission. Never break the bond in heterolytic fission. Homolytic fission मतलब ये जो bond है, break करके H के ऊपर एक free radical, इसके ऊपर एक free radical. So you can show that as ऐसा कुछ कर सकते हैं ना. H bond C, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जैसा आया, बॉन्ड H, यहाँ पे दो फ्री रेडिकल्स आजू बाजू में है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो. यहाँ पे आके आपको एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना. So this is one of the hyperconjugating structure. The other structure will be show the same thing with different hydrogen. H free radical, carbon, hydrogen, hydrogen, डबल बॉन्ड CH2. और एक भी दिखा सकते हैं आप लोग. H बॉन्ड C बॉन्ड H, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2. क्लियर है? You can show this. We may not show the resonance hybrid for this, क्योंकि resonance hybrid में वो जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल के लिए कुछ सिंबल नहीं है, पार्शियल फ्री रेडिकल ऐसा कुछ सिंबल नहीं है. So we say that this particular free radical is stabilized by hyperconjugation. No need to draw the hyperconjugating structures as well. No need to draw the resonance hybrid. It is not necessary. बस आप ये कहेंगे there will be hyperconjugation. Clear है? ठीक है. Try to draw the hyperconjugating structures for this molecule. Carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. Draw the hyperconjugating structures. Show some hyperconjugating structures for this molecule. In hyperconjugation, it is sigma alternate pi. सिद्धि नहीं आई क्या आज? सिद्धि नहीं है, वरद मोरे दरबार.
ओके, ऐसा कुछ कर रहे होंगे आप। ये जो सिग्मा अल्टरनेट पाई है, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करो एंड इसको यहाँ पे शिफ्ट करो। नो नीड टू ब्रेक द बॉन्ड। यहाँ पे आप लोग पहले स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नो नीड टू शो दैट डायरेक्टली नेगेटिव अल्टरनेट पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना, नहीं तो सिग्मा अल्टरनेट पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओ। ओके, सो इट विल लीड टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपको अभी नेगेटिव आया। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे शिफ्ट करवाओ, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करवाओ। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड, ये तो अभी भी वैसा ही है। अभी मैं एक ही पर्टिकुलर हाइड्रोजन के साथ दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ जाएगा एंड यहाँ पे जाएगा। I want you to observe one thing. In hyperconjugation, if you are having a methyl group, the methyl group is acting as electron releasing groups because it is giving electrons to the benzene ring. Double bond C, bond H, bond H, यहाँ पे पॉजिटिव। लास्ट स्ट्रक्चर में ये वापस आया, इन दोनों के बीच में वापस बॉन्ड बना देना। ये बन जाएगा। सो इसमें हुआ क्या है, इवन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन यू आर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेंजीन रिंग। स्टार्टिंग में हमने कुछ कंपैरिजन के टाइम पे, एसिडिक्शन के कंपैरिजन के टाइम पे we used to mark the effects of CS3। CS3 के प्लेस में मैंने ऐसा कुछ कहा, यहाँ पे और एक इफेक्ट लगेगा, the effect is hyperconjugation। okay, hyperconjugation is also an electron releasing effect. If it is an electron releasing effect, it will be decreasing the acidic strength। hyperconjugation और यहाँ पे resonance है, out of these two resonance is the more dominating, so this will be decreasing the acidic strength to more extent। so इसलिए यहाँ पे ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ा। ओके, सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम मार्क करेंगे फ्यूचर में, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो यू विल बी मार्किंग हाइपर कॉन्जुगेशन टू एंड वी विल बी कंपेयरिंग विद हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट हाइपर कॉन्जुगेशन है। क्लियर है? एंड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ये है। ये आपको स्ट्रक्चर्स कैसे आता है वो पता होना चाहिए, एग्जाम के टाइम पे जरूरत नहीं। यू नीड टू नो हाइपर कॉन्जुगेशन इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। और एक चीज ऑब्जर्व करो, because of hyperconjugation you are getting negative charge at this carbon, at this carbon and at this carbon. Do you have negative charge on these carbons? You have negative charges on this and on this। इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है आपको, प्लीज ऑब्जर्व दैट। सो विथ रेस्पेक्ट टू एनी ग्रुप, उसका रेजोनेंस का इफेक्ट और उसका हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट will be observed only at ortho and para positions। उसका resonance effect या hyperconjugation effect can never be seen at the meta position। So whenever the group is at meta position with respect to any other group, उसका केवल inductive effect ही लगाएंगे हम। We won't be comparing it with the help of hyperconjugation or resonance। We will be using only the inductive effect of the group if the group is at meta position। Is that clear? Yes everyone। ओके, इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों ने इस पॉइंट के ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो आपको ये ध्यान में रखना, whenever the group is at meta position we won't be having the effect of resonance or hyperconjugation, we will be having the effect of only inductive effect। clear? ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन। You need to compare the acidic strength of various hydrogens। I'm giving you a molecule, you need to compare the acidic strength of
different hydrogens. Acidic order. The molecule given is CH2. This is written as HA. इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है that is written as HB. इसके ऊपर और एक हाइड्रोजन है. Then you have C double bond O. यहाँ पे दो हाइड्रोजन है. This is HC. C double bond O. CH3. You need to compare the acidic of this particular hydrogen, HA, HP, and HC. You need to tell me which is most acidic and which is least acidic. Which is most acidic and which is least acidic. Which is most acidic and which is least acidic. Acidic का मतलब क्या है? That particular hydrogen is removed as H positive. So आप लोग H positive जैसा उसको हटा देना. H positive हटाने के बाद आपको नेगेटिव चार्ज बनेगा ना. See for the stability of the negative charge. जिनमें वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, that particular H positive will be the stronger acid, or it will be more acidic. Everyone observe. ये वाला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको. पहले क्वेश्चन तो देख लिया है ना. Okay, they are asking about HA, HB, HC. Acidic का मतलब क्या है? You need to remove that H positive. Okay, if I am removing that as H positive, suppose HA को हटा रहा हूँ मैं. If I am removing the HA, इस कार्बन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज आएगा. If I am removing HB, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. If I am removing HC, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा. We need to analyze which particular negative charge is more stabilized. जो ज्यादा stabilize होगा, that corresponding proton will be more acidic. Agreed? Right? यहाँ पे देखो, this particular negative charge can go in resonance with this particular pi bond, negative alternate pi bond. Agreed? यहाँ पे जो negative charge है, it can go in resonance with this particular C double bond O, or it can go in resonance with this particular C double bond O. दो directions में जा सकता है वो. Negative alternate pi दोनों cases में है. Negative alternate pi, negative alternate pi. So इन दोनों के comparison में किस केस में negative charge ज्यादा stabilize हुआ? C. In this case, in the C part, क्योंकि दो के साथ resonance में जा रहे हैं. यहाँ पे एक ही के साथ. ये जो negative charge है कभी भी resonance में जा सकता है? No, right? Negative alternate pi bond, not in resonance. So which is least acidic? A. HA. Which is highly acidic? HC. बस हो गया. ऐसा कंपेयर करना है आपको. इससे भी बढ़िया और एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप. What you can do is see for the hyperconjugation. Hyperconjugation की वजह से C bond H bond क्या होता है? It will become partial. Whenever the bond becomes partial, that particular hydrogen is becoming acidic. यहाँ पे ये जो particular hydrogen है, it can go in hyperconjugation only with this C double bond O. ये जो particular hydrogen है, it can go in hyperconjugation with these two C double bond O. दोनों साइड है ना hyperconjugation. So ये वाला bond ज्यादा partial हुआ when compared to this. इस केस में hydrogen, it is not participating in hyperconjugation because that is a beta carbon.
ये बीटा हो गया, ये अल्फा हुआ और ये भी अल्फा हुआ. अल्फा कार्बन्स एंड उनके ऊपर जो हाइड्रोजन है दे कैन पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन बट नॉट बीटा. एग्रीड. सो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड उतना पार्शियल होगा, जितना बॉन्ड पार्शियल होगा उतना इजीली ब्रेक कर सकता हूं. You can either compare it by using hyperconjugation or by compare it by using the conjugate based stability. But पहले रीजन क्या है, हमको hyperconjugation के बारे में सोचना चाहिए, because hyperconjugation के वजह से ही this particular hydrogen has become more acidic. उसके बाद उसका conjugate base जो है it is becoming further more stable. Okay, the initial reason for this hydrogen to become more acidic is hyperconjugation. Agreed? Okay. क्लियर है? ओके गुड. ठीक है. Again you need to compare the order of acidic strength, This question is very important. Order of acidic strength. I'm giving you 4 molecules. This is benzoic acid. यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आपका NO2 लगाया, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 लगाया, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया. I can abbreviate this as phenyl along with COH, PHCOH. This is ortho isomer, ortho nitrobenzoic acid. This is meta nitrobenzoic acid. This is para nitrobenzoic acid. You need to tell me the order of acidic strength among these compounds. पहले आप लोग कोशिश करो, try to get the answer. आपको पॉइंट ये याद रखना है, if the group is at meta position, that particular group's resonance effect won't be compared. You need to see only its inductive effect. Okay, ये ध्यान में रखो आप लोग. Get the answer. Very, very, very important standard question in JEE Mains and Advanced. Very standard.
Any order? Anyone? Samarth? जो ऑर्डर आपको लग रहा है, जो आया है बताना, तभी सीखेंगे। मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। पहले एक बार बताओ आप लोग, जब मैं समझाऊंगा तब आपको और इजी लगेगा। Anyone wants to answer? So O greater than P greater than M. O greater than P. P greater than M. M greater than। और एक भी है ना ये वाला, इसको भी इंक्लूड करना। हाँ वो लास्ट में। लास्ट में। वेरी गुड। हर्षदा ने जो भी कहा है दैट इज एग्जैक्टली द राइट ऑर्डर। सबसे पहले आप सब लोग को ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स increases Acidic strength. acidic strength. I hope everyone know this. Electron releasing groups decreases acidic strength. Okay, so यहाँ पे पहले NO2 ग्रुप है ना, so identify the effects shown by NO2. क्या क्या इफेक्ट शो करता है NO2 यहाँ पे? if it is at ortho position it can show -I as well as -M. Agreed? Dominating effect is -M. If it is at meta position I will be marking only the inductive effect. रेजोनेंस का इफेक्ट लगता ही नहीं है. If it is at para position both -I as well as -M, dominating effect is -M. Electron withdrawing groups increases the acidic strength. So ये जो ortho और para जो है their acidic strength is increased because of resonance -M. ये जो meta है its acidic strength is increased only by inductive effect. Which is more dominating? Resonance. So obviously ortho और para ज्यादा होना चाहिए. ऑर्थो में क्या है? The NO2 group is close to COOH, so inductive effect इसके ऊपर ज्यादा लगेगा. पैरा में क्या हुआ? The NO2 group has become far to COOH, as a result inductive effect थोड़ा कम लगेगा. So इन दोनों के कंपेयर करना है तो this will be greater when compared to this, क्योंकि रेजोनेंस जो है it doesn't depend on distance. दोनों में रेजोनेंस इक्वली लगेगा. Resonance doesn't depend on distance, only the inductive effect depends on distance. As -I group in this particular ortho isomer is closer, उसका एसिडिक ज्यादा बढ़ेगा when compared to the para. क्लियर है? सो आंसर क्या होगा? एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा तो ऑर्थो रहेगा, then you will be having para, then you have meta, then you have normal. क्योंकि नॉर्मल में there is no substitution ना, there is no electron withdrawing group. So सबसे लास्ट में you have unsubstituted benzoic acid or PHCOH. Any doubt anyone? Okay. इस केस में क्या हुआ? As NO2 is closer, more -I. Okay. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीवन, इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम कर रहा हूं मैं. इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम किया इंपॉर्टेंस को. एक ही टिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. मुझे लगा पहला वो ही क्वेश्चन दे दिया. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसमें 3 टिक्स लगाते.
यहाँ पे substituent को I'm keeping that as OH. Again, ortho para meta. This can be abbreviated as phenyl group is PH, उसके ऊपर COH. यहाँ पे फिर से ऑर्थो आइसोमर, बट यहाँ पे हाइड्रोक्सी आ गया. This is meta isomer. This is para isomer. Get the answer in this. समरजीत वीडियो ऑन रखना अपना. समरजीत, आर्यन, हर्षवर्धन. भरत तोराट के रूम बहुत आर्टिस्टिक लग रहे हैं. लाइटिंग अच्छा है. भरत शर्माने लगा. फाइनली यशराज ने एक जगह पे बैठ गया. जयेश, इसका आंसर बता सकते हो? Identify the group and identify the effects which it can show. You need to know how to identify minus I या plus I, minus M या plus M. ये तो obvious होना चाहिए सबको. हाँ, OH कौन सा इफेक्ट शो करता है जयेश? OH माइनस I. बिल्कुल सही. तो माइनस I और माइनस I और मेरे से पूछ रहे क्या? अगर किसी के ऊपर लोन पेयर दिखा आपको, इतना ही बेस है ये, इतना ही करना है. किसी के ऊपर लोन पेयर दिखा, इट विल बी प्लस M. किसी के साथ डबल बॉन्ड करके हुए दिखा, इट विल बी माइनस M. इतना ही है. OH उसके ऊपर लोन पेयर नहीं दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हमेशा रहता ही है. So it will be a plus M group. If it is at ortho position, it can have both minus I as well as plus M. If it is at meta position, it can have only minus I, again minus I and plus M. Dhruv, can you tell me the answer? Order क्या होगा? Yes. Answer please. Final order. Sir, M greater than P greater than 4.
m greater than p greater than o. ये बार बार आप लोग को इसको छोड़ दे रहे, ये भी है, इसको भी कंपेयर करना है। वो समझ नहीं आ रहा। एनीवन? पूर्वा, आंसर? Sir, m greater than o greater than p greater than o last. No, not the right answer. यशराज, हाँ देवाशीष। Sir, m greater than p is greater than p greater than o. यशराज अरे यार करके कुछ तो करके चला गया। देवाशीष बताना फिर से, सुनाई नहीं दिया, बट आई थिंक यू गॉट द राइट आंसर। हाँ, m greater than वो first basic ओके greater than p greater than o. ओके, थोड़ा सा गलत है। सर हाँ यशराज, सर वो फर्स्ट वन ग्रेटर देन m. गलत। हाँ पूर्वा। Sir, m greater than benzoic acid greater than o greater than p. हाँ, m greater than benzoic acid greater than o greater than p. देवाशीष, Sir, has o to be- कैसे? it has to be o greater than p. o कैसे, o क्यों? Anyone explain please? So plus m destabilizes more, so minus side लिखेंगे. या देखो, सबसे पहले आप लोग ऑर्डर्स मार्क करने के बाद फर्स्ट कंफर्म किसके साथ आप लोग कंपेयर करने वाले हो। जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा उसके साथ ही कंपेयर करना है। डोमिनेटिंग कौन है? माइनस है, प्लस एम। प्लस एम Plus m. यहाँ पे डोमिनेटिंग माइनस है, केवल एक ही है मेटा में, सो उसी के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे प्लस एम है। रेजोनेंस, डज इट डिपेंड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस? No. नो राइट। इंडक्टिव इफेक्ट, इट डिपेंड्स विथ डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे आपको प्लस एम के वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, इट इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्टेबलाइज, राइट? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, सो ये जो OH है, इट इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ रेजोनेंस एंड इट इज डिस्टेबलाइजिंग इट। सो ऑर्थो और पैरा कम ही होना चाहिए, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। सबसे ज्यादा तो मेटा रहेगा बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, माइनस है। यहाँ पे ये न्यूट्रल है ना, रेफरेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सो माइनस है सबसे बेटर होगा, प्लस एम सबसे लीस्ट होगा। सो सबसे ज्यादा क्या कौन होना चाहिए? यू नीड टू हैव मेटा ग्रेटर देन, उसके बाद PHCOH। अभी ऑर्थो और पैरा में कैसे कंपेयर कर रहा हूँ? बोथ ऑफ देम आर डिस्टेबलाइजिंग इक्वली विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस, क्योंकि प्लस एम इट डजंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, दोनों OH ही है ना। यहाँ पे माइनस है जो है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, जितना पास में रहेगा माइनस है मतलब विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ। सो यहाँ पे रिलेटिवली इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज कर रहे हैं, बट दूर चला गया, बेटर कौन होगा? और दो ना, आया समझ में? सो यू विल बी हैविंग ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा। इज दैट क्लियर? एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ये एक्सपेक्टेड है, जो हमारे कॉन्सेप्ट से जितना भी पढ़ा वो अप्लाई करते हुए। दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, दिस इज नॉट द एक्चुअल ऑर्डर, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेटा पहले एक्सपेक्टेड ऑर्डर सबको समझ में आया, क्योंकि ये तो लिखना आना चाहिए। अगर ये लिखना आता है तो तभी हमको वो जो एक्सेप्शन ऑर्डर जो है वो याद रहेगा। सबसे ज्यादा मेटा रहेगा बिकॉज इट इज हैविंग ओनली माइनस है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस। सबसे कम ऑर्थो एंड पैरा एक्सपेक्टेड है बिकॉज दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस। रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग, ये ज्यादा डोमिनेटिंग है तो इसकी वजह से डिस्टेबलाइज ही होगा। इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा बहुत या ऑर्थो वाला स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, सो बीच में रहेगा। ओके, इन दोनों के बीच में। एक्चुअल आंसर इज ऑर्थो ग्रेटर देन, ऑर्थो सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सब अपना पोर्शन वैसा ही है। जहां पे ऑर्थो है ना उसको पहले लेके आ जाओ। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। रीजन इसके लिए ये है, कॉन्सेंट्रेट
The reason is also important. If I'm removing H positive from the COOH, I will be getting a negative charge here. And यहाँ पे आपको ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. Can you have hydrogen bonding with this negatively charged oxygen? Hydrogen bonding is the strongest form of dipole-dipole interaction. Hydrogen bonding कब होगा? Whenever the hydrogen is attached to highly electronegative element, यहाँ पे oxygen से attached है, so इसके ऊपर partial positive है. If it comes in contact with another highly electronegative element like oxygen, nitrogen or fluorine, यहाँ पे oxygen है, and oxygen के ऊपर negative charge भी है. So that particular negative charge can have very significant interaction with the positive charge on hydrogen. Okay, you are forming attractive forces. Whenever there are attractive forces, the stability of the system is increased. So इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है. और एक चीज ऑब्जर्व करना, because of the formation of hydrogen bond, I am forming a ring-like structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-membered ring is generated. 6-membered ring is formed. बाद में हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे. In nature, 6-membered rings are considered to be highly stable. We will understand the reason later. 6-membered rings are highly stable. उसके बाद 5-membered rings रहता है. उसके बाद 7-membered rings. 6-membered rings are considered to be highly stable. This particular hydrogen bonding is resulting in the formation of a 6-membered ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As it is forming a 6-membered ring, again the stability is achieved. एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यू आर फॉर्मिंग ए 6-membered ring, उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी मिला. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग, it is called as chelation. Process of formation of ring is termed as chelation. Is that clear? So ring formation के वजह से, as well as because of hydrogen bonding, the conjugate base is getting significant stability. उस रीजन के वजह से ऑर्थो को सबसे पहले लेके आ गया. क्लियर है? याद हो जाएगा? ओके, ओवरऑल ऑर्डर आपको करना क्या है? You need to write the expected order. उस expected order में ऑर्थो जहां पे भी है उसको सबसे पहले लेके आ जाओ. Okay, this affect ortho isomer having the greatest acidic strength, that particular effect is called as ortho effect. उसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट. इसके बारे में और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे बाद में, बट फॉर नाउ जब भी ऑर्थो का सबसे ज्यादा हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इन दैट केस द इफेक्ट इज कॉल्ड टर्म्ड एज ऑर्थो इफेक्ट. द ऑर्थो आइसोमर इज मिसबिहेविंग. उसको एक जैसा एक्सपेक्टेड है बट उसका सबसे ज्यादा हो गया. क्लियर है? बाकी सबका कुछ नहीं हुआ, बाकी सब अपना ऑर्डर मेंटेन किया. ओनली ऑर्थो आइसोमर हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन. I hope this is clear. I'm moving to the next question. Any doubt, anyone? ये particular part बहुत important है. Please concentrate. आपको final exam में भी इसी question क्या है, इसी के ऊपर question आता है. They may ask what is the reason for that, what is chelation, hydrogen bonding, anything. Okay. Next question. Again, you need to first tell me the expected order. अगर उसमें कुछ variation है तो मैं बताऊंगा. What is the name of this compound? Phenol. 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 Phenol के ऑर्थो पोजीशन पे
NO2, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2, पैरा पोजीशन पे NO2. Order of acidic strength, tell me the expected order. यहाँ पे this is PHOH, again this is ortho isomer, this is meta isomer, this is para isomer. So ortho greater than, para greater than, meta greater than, PHOH. बिल्कुल सही, very good. बिल्कुल सही हर्षदा, very good. Ortho greater than, para greater than, meta greater than, PHOH. That is the expected order. NO2 क्या क्या effects? किधर है जयेश? NO2 क्या क्या effects? जयेश, NO2 के effects बताओ. minus I Minus and- I and plus M. प्लस एम नहीं है NO2. NO2 के लिए बस याद रखना, NO2 is the most commonly given substituent in any question of organic compounds. Okay, NO2 ही देते हैं. NO2 में आपको लोन पेयर कहाँ दिख रहे हैं? नाइट्रोजन के ऊपर. NO2 का स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ किया तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, माइनस एन के ऊपर पॉजिटिव. सो लोन पेयर नहीं है आपको, डबल बॉन्ड है, multiple bond electronegative atom pulls the electrons, so it is minus m. NO2 is minus m. और पहले भी क्वेश्चन किया ना जय, सब ऑब्जर्व करते रहना. प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज बी एक्टिव. ओके, ऑब्जर्व करो, ये माइनस है और माइनस m. सो मेटा पे क्या होगा जयेश बताओ? मेटा पे, मेटा पे सिर्फ माइनस है, बस उतना ही. यहाँ पे माइनस आई और माइनस m दोनों. डोमिनेटिंग इफेक्ट जो है इट इज माइनस m, हियर आल्सो इट इज माइनस m. दोनों में कंपेयर करने के लिए ऑर्थो में माइनस आई ज्यादा लगेगा व्हेन कंपेयर टू पैरा, क्योंकि पास में है ना. सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? ऑर्थो सबसे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. इफ इट इज विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स विद रेजोनेंस, हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ. ऑर्थो सबसे ज्यादा, पैरा मेटा नॉर्मल. नॉर्मल. ओके, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर अगेन. इसमें थोड़ा वेरिएशन आता है. द वेरिएशन इज ऑर्थो का थोड़ा कम हो जाता है. पैरा ग्रेटर देन, ऑर्थो ग्रेटर देन, थोड़ा कम, एक प्लेस में शिफ्ट हुआ. रीजन क्या है उसका? इस केस में भी द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑब्जर्व एवरीवन. O bond H and double bond O, bond O negative,
इसके ऊपर पॉजिटिव, and there is hydrogen bond between these two. देखो, please observe, everyone concentrate. You will have significant amount of hydrogen bonding. You will have significant amount of hydrogen bonding between a negatively charged oxygen and the hydrogen, rather than the hydrogen bonding between a neutral oxygen and a hydrogen. Agreed? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, चार्ज ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस. यहाँ पे इनिशियली भी हमको, इफ यू ऑब्जर्व, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं उसको, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में है? इट इज बिटवीन द न्यूट्रल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. यहाँ से H पॉजिटिव हटने के बाद द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस and the hydrogen of this. This hydrogen bonding is much more significant than this hydrogen bonding. Okay? यहाँ पे इनिशियली भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, एंड ये जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, whenever they both come in vicinity, there will be formation of an attractive force. But this attractive force is relatively less significant when compared to this attractive force. Reason क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगा? whenever it is interacting with the negatively charged oxygen rather than neutral. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही वो है, at the start only you have a hydrogen bond between negatively charged oxygen and hydrogen. Because of this, the orthonitrophenol, it is not ready or it is not willing to lose the H positive. Because if it is losing the H positive, hydrogen bonding थोड़ा loss हुआ ना. और else ऐसा सोचो, इस ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है, hence it is unable to give more and more H positive. उसकी वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा है, it got decreased by only slight amount, और पैरा के कंपैरिजन में कम हुआ, उतना भी ज्यादा कम नहीं हुआ, ओनली पैरा के कंपैरिजन में कम हुआ. Because H positive हटाने के बाद it can be stabilized by NO2 minus M. समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट. इस केस में वो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है बहुत कम मत करो, पैरा के कंपैरिजन में थोड़ा ही घटता है. ऑल दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर Ka वैल्यूज. Ka वैल्यूज मतलब उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. क्लियर एवरीवन? तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था ना, लेकिन O नेगेटिव था. ये स्टेबल बताया था, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में H पॉजिटिव हटाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा हमने. इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं विदाउट रिमूविंग द H पॉजिटिव. डिफरेंस है, समझो. यहाँ पे विदाउट रिमूविंग द H पॉजिटिव आई एम कंपेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे आफ्टर रिमूविंग द H पॉजिटिव आई एम फॉर्मिंग ए सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि नेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच में बन रहे हैं. देयर इज स्लाइट डिफरेंस. अंडरस्टैंड दैट? यस. ओके, क्लियर है? So, यहाँ पे ओके आया समझ में? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, the H positive donating tendency in ortho isomer slightly decreases. Please be attentive. All these things are not so easy. If you are attentive, then only you can find them easy. Okay, let us solve questions from material now.
चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जल्दी जल्दी करते हैं. Question number 1, they're asking which of the following species cannot show resonance. Everyone open your material fast. Please open your material. Okay, first question. Which of the following species cannot show resonance? इसमें सोचना क्या है? You need to see if there is a resonating system or not. Jayesh, tell me all available resonating systems fast, quick. वो पूरे हाँ पूरे. पाई अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, पाई अल्टरनेट नेगेटिव, पाई अल्टरनेट ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई अल्टरनेट लोन पेयर और वो बैक बॉन्डिंग का lone pair and positive charges on adjacent atoms. Lone pair, positive charge on adjacent atom, which is the case of back bonding. Pi alternate pi alternate positive, pi alternate negative, pi alternate lone pair, pi alternate free radical, lone pair and positive charges on adjacent atoms. Clear है? So उन systems में है कि नहीं आपको check करना है. So A में it is not pi alternate pi, it is pi alternate pi. So A is the answer. उसमें resonance नहीं हो सकता. Okay? Okay. Question number 2. Resonance is not possible in A. Option A. Again, it is pi alternate. Very good. यहाँ पे B में आपको lone pair है, so it can go in resonance. Lone pair and positive charge on adjacent atoms. C में भी आपको Cl के ऊपर lone pair है, so it can go in resonance. D में भी आपको D में देखो interesting. In D also you can have resonance. The resonance is between यहाँ पे सल्फर है. सल्फर का outermost shell कौन सा है? Third shell. In the third shell you have 3d orbital. So कार्बन के 2p orbital में जो भी negative charge है, that is overlapping with 3d orbital. Back bonding आप लोग याद है तो 2p और 3d के बीच में significant overlap होता है करके हमने लिखा है back bonding के केस में. 2p 3p के केस में significant overlap नहीं होता, but 2p 3d क्योंकि 3d जो है it is pointing towards that p. 3d is pointing towards p, hence there is better overlap, even though the size is slightly different. So वो वाला लास्ट केस समझ में आया? In the sulfur you are having vacant d orbitals. Into the vacant d orbitals I am giving the negative charge, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन आ सकता है, which is also a case of resonance. Resonance मतलब distribution of charge. वो नेगेटिव चार्ज है उस पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल के अंदर बांट दिया, जितना लोड शेयर होगा उतना अच्छा होगा. ओके, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है सल्फर के डी ऑर्बिटल के अंदर बांट दिया. क्लियर? So this is also a resonating system, but question में answer easy है. A, it is not a resonating system, but understand how D is the resonating system. Important. Question number 3. Which of the following does not have a conjugate system? Answer? C. C. Any doubt in that? Anyone? No. Because there is no alternate, na? There is only pi bond. In C, you can have hyperconjugation. You are having alpha hydrogen, so you can have 3 hyperconjugating structures. 3 alpha hydrogens there. Okay. 4. The compound which is not resonance stabilized. First. C. C, because it is alternate. CH2
डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl, लोन पेयर अल्टरनेट है ना, इसलिए नहीं है। फिफ्थ, which of the following is not an option? B. Reason? The nitrogen is making 5 bonds. Nitrogen is making 5 bonds. Clear है? Good. बाकी सब सही है। बाकी सब स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहा होगा एक बार वो भी देख लेना। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 bonds, so इसको शिफ्ट कर दो, देन यू विल गेट द ऑप्शन C, है कि नहीं? ओके, सो ऐसा हर एक स्ट्रक्चर के लिए आंसर के अलावा बाकी भी चीजें समझते रहना। ट्राई टू एवेल्युएट अदर ऑप्शंस टू, तब आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगा। You need to have clarity on things. Solving lot of questions is not important. Having clarity is important. Everyone. Okay. Question number 6. Which of the following pair is not pair of resonating structures? Option A है, because it is pi alternate pi. दूसरे में pi alternate, उसमें resonance नहीं हो सकता. So option A. Clear है? प्लीज पुट योर वीडियो ऑन। बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ कर दिया, किसी ने भी किया नहीं क्या प्रैक्टिस शीट? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच हैज लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, मतलब किसके अंदर वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है। लोकलाइज्ड मतलब एक ही पॉइंट पे है। आंसर क्या है? ए में रेजोनेंस में जा सकता है, ए एंड सी। ए में रेजोनेंस में नहीं जाएगा, सी में भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। आई थिंक ऑप्शन इसका आपको ऑप्शंस में गलत दिया है। समझ ने क्वेश्चन भेजा था मुझे, आई थिंक आंसर आपको बी एंड डी दिया है ना सर? मैंने ऑप्शन गलत देखा। तूने ऑप्शन गलत देखा? हाँ, नीचे वाला देखा था शायद। ये मत करो, ऑप्शंस गलत देखना ये सब मत करो। आप लोग फ्यूचर के सिटीजन्स हो, डोंट डू दिस, ऐसे मिस्टेक्स मत करो। ओके, ठीक है। सो आंसर इज ए एंड सी। ए एंड सी किस में है? ऑप्शन बी। इसमें रेजोनेंस में जा सकता है बिकॉज इट इज पाई अल्टरनेट पॉजिटिव। इसमें भी रेजोनेंस में जा सकता है, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज और एडजेसेंट एटम्स। ओके, ये बताना आउट ऑफ बी एंड डी which is highly resonance stabilized? Out of options B and D, which is highly resonance stabilized? D. D. Very good. Reason, Harshada? So that from both sides it is there na, lone pair and positive charge. वो ठीक है, उससे वो ठीक है। The better reason is it forms octet completed structure. This is octet completed structure which is highly stable. You may not have an octet completed structure in this, क्योंकि कार्बोकैटायन तब यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐसा शिफ्ट होगा। In D you can have octet completed structure. Is that clear? So D में resonance stabilization बहुत ज्यादा रहेगा। Okay? हर्षदा, know how to see for the octets. कार्बोकैटायन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको दे दिया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है। 13, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कौन बताएगा? ध्रुव, टेल मी द आंसर। सर ऑप्शन सी। 3 लेस देन, सी नहीं है, गलत है। सबसे लीस्ट तो 4 होगा ना सर? ऑप्शन बी। Option B. B is the right answer. This is octet incomplete. Octet of oxygen is incomplete. Whenever highly electronegative atoms of octet is getting incomplete, it is highly unstable. कितने बार डिस्कस किया मैंने ये? बच गए तुम लोग, ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं। ओके, क्लासरूम में मार पड़ता। प्लीज सी फॉर द पॉजिटिव चार्ज अगर इट इज प्रेजेंट ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
एंड इफ इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट इट इज हाईली अनस्टेबल, कभी भी नहीं करना है उसको। डी में ध्रुव, 3 में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 3 में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, विच इज बेटर? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ना। ओके, क्लियर है? 14th, in which compound delocalization is not possible? Answer 2-butene. 2-butene, क्योंकि वहां पे एक ही पाई बॉन्ड है। ये 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3,5 हेक्साट्राइन, अगर आप लोग ड्रॉ किया तो पाई अल्टरनेट पाई दिखेगा, बेंजीन में तो होगा ही है। सो आंसर इज ए। 15th, देखो कितना जल्दी हो रहा है क्वेश्चंस। कितना टाइम लगेगा आपको ये बैठ के सॉल्व करने के लिए? कर लिए होंगे बाकी लोग, सब लोग किए होंगे, बस ऐसा ही बोल रहा हूँ। 15th, इन पाइरिडीन का हाँ नंबर ऑफ कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स आर 6। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको काउंट नहीं करना है, दैट पर्टिकुलर लोन पेयर इज नॉट इन रेजोनेंस, है कि नहीं आदित्य भोसले? ओके, सो आंसर इज ए, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स आर 6। डोंट मार्क दैट एज 0, और पाई अल्टरनेट पाई तो है ही ना, डोंट मार्क दिस एज 0, पाई अल्टरनेट पाई ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है। 16th, इंडक्टिव इफेक्ट implies the atom's ability to cause bond polarization. सही लग रहा है आपको? Yes, sir. Yes, right. B देखो, increases with increase in distance, बिल्कुल गलत। C is implies transfer of lone pair, transfer होता है क्या इंडक्टिव इफेक्ट में? there is only shift, बस हो गया। तो D में भी आपको ट्रांसफर करके दिया है, so answer is A. Clear? Good. 17th, which of the following groups has highest plus psi effect? D. C. C. Okay. D. If the D, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स है उतना ज्यादा प्लस इफेक्ट है। ओके, जितना ज्यादा कार्बन है उतना ज्यादा प्लस इफेक्ट है। नहीं तो if the same question is asked for which of the following has highest hyperconjugation, answer A, because you are having 3 alpha H in this case। यहाँ पे 3 alpha H है, यहाँ पे आपको 3 alpha H है, यहाँ पे आपको 2 alpha H है, यहाँ पे आपको 1 alpha H है, यहाँ पे नो अल्फा H। सो सबसे ज्यादा तब ए हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पूछा तो। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहे। ओके ओके, गुड। मैक्सिमम माइनस इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द ग्रुप NO2, सबसे ज्यादा NR3 पॉजिटिव, उसके बाद NO2 ही रहता है। 0 इंडक्टिव इफेक्ट, रेफरेंस कौन है? हाइड्रोजन H. मेरा ग्रुप्स हैविंग माइनस आई, यहाँ पे NO2 it is minus I, but CS3 plus I, NO2 minus I, Cl minus I, Cl minus I, CS3 plus I C2H5 plus I। so दोनों माइनस I इफेक्ट मतलब B. C2H5 is plus I। ओके, B हो जाएगा सर, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट is the resonance of Pi electrons only. pi electrons only, केवल pi electrons ही मूव करेगा, सिग्मा नहीं मूव करेगा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ठीक है, बट दोज आर मूव्ड थ्रू द पाई बॉन्ड, सो इसलिए वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एडजेसेंट एटम्स में रहा तो हम दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना देते हैं ना, दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ओके, 22, मेसोमेरिक इफेक्ट टेक्स पार्ट इन सैचुरेटेड सिस्टम। गलत है, सैचुरेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, अनसैचुरेटेड सिस्टम कंटेनिंग नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा क्या? कॉन्जुगेशन नहीं है तो नहीं। ए ट्रिपल बॉन्ड इन ए कार्बन चेन, वी मे नॉट कमेंट ऑन दिस। एक ही ट्रिपल बॉन्ड रहा तो कुछ नहीं होगा, अल्टरनेट में कुछ तो रहना पड़ेगा ना। ओके, डी में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना, so there will be resonance। CH2 double bond OH, इसके ऊपर पॉजिटिव। आउट ऑफ these two structures which is more contributing?
Out of these two structures, which is more contributing? Fast. Second one. First one किसने कहा? कौन है ये? इमीडिएट वीडियो ऑफ कर दिया। यशराज तुमने ही कहा क्या? सर नहीं, वो गलती से कह दिया। गलती से मिस्टेक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। यशराज इसका 23, इसका ठीक बताओ फिर। हाँ सर, सी सही है। भार्गव सही है सी? यस सर। भार्गव तुम व्हाट्सएप तो नहीं चला रहे ना? बहुत इन्वॉल्व लग रहे हो इसलिए। बाय बाय बोल दिया क्या? बाय बोल दिया क्या व्हाट्सएप पे? ठीक है। सी होगा ना? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा अल्टरनेट पाई, दैट एमओ इंडिकेट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना, ऑल दोज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओनली। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो भी ऑर्बिटल्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। सो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अल्टरनेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा अल्टरनेट पाई ना, H C bond H, so sigma alternate pi. और you can also take sigma alternate p orbital, ऐसा भी ले सकते हैं। सिग्मा विथ p orbital, वो ऑप्शन नहीं है इसमें। सिग्मा विथ p orbital मतलब केस क्या हो जाएगा? वो कार्बोकैटायन का केस। C bond H bond H bond H, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, ये p orbital है ना। So this is sigma alternate p or sigma with p orbital. वैसा ऑप्शन नहीं है, so option we will mark that as C. Any doubt? 24. Hyperconjugation is possible in which of the following species? Answer D. fast. D. Sorry? D. D. दिल्ली नहीं, बॉम्बे। बी। अभी अभी आप लोग को क्लास के स्टार्टिंग में ये मैं क्यों ड्रॉ करवाया, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो करके आप लोग को दिया है कि नहीं? आप लोग ने ड्रॉ किया? H सिग्मा अल्टरनेट पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? डी में ध्रुव, यू हैव नो अल्फा H। एंड ए में नहीं होगा, ये कार्बोनियन है। मैं आपको पढ़ाते समय भी बताया ना, ए कार्बोनियन इज नेवर स्टेबलाइज्ड बाय, और ए कार्बोनियन कैन नेवर हैव हाइपर कॉन्जुगेशन। रीजन क्या है देखो, कार्बोनियन मतलब यहाँ पे नेगेटिव हुआ। यूजुअली हम करते क्या है, पहले इसको ऐसा ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक किया तो बनेगा क्या? हाइड्रोजन यहाँ पे ये H पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव है। कैसे जा सकता है रेजोनेंस में? इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ पे जंप करेगा? नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, जंप नहीं होगा ना। आया समझ में? सो इसमें in this case you cannot have hyperconjugation. A carbanion cannot have hyperconjugation. कार्बोकैटायन के लिए हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल के लिए हो सकता है। क्लियर है? So the answer is B. 25. Highest number of hyperconjugation forms. Answer fast. C. 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 Okay. 3 alpha H, 3 alpha H, 3 alpha H, total 9 alpha H.
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, एरोमेटिसिटी अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम कर सकते हो. बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, bond length and bond energy, we can solve it from here. We will discuss about these questions in tomorrow's lecture. So solve 34 to 48 everyone. 34 से लेके 48 तक खत्म करके रखना सभी लोग. होमवर्क है 34 to 48. अगर आप लोग कर लिया तो अच्छा है, अगर नहीं किया तो प्लीज सॉल्व 34 to 48. We will discuss in tomorrow's lecture. सब कुछ हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया. There are some interesting questions बीच में. Solve all the questions. मुझे एक क्वेश्चन के आंसर चाहिए. प्लीज टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39. आंसर क्या दिया है मुझे बताना. ए दिया है या बी दिया है? ए दिया है. ए दिया है. ए दिया है. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 34 to 48. 34 to 48. We will meet in tomorrow's lecture. Okay.